अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत 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 रिक्वेस्टेड और बहुत टाइम से, बहुत ज़माने के बाद हम ये रिक्वेस्ट पूरी कर पा रहे हैं। तो देर नहीं करते, आज की हमारी वीडियो है बजाज फैमिली पर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बजाज फैमिली बिजनेस एम्पायर, हाउ बिग इज बजाज ग्रुप। जमुना लाल बजाज। Okay guys, so start करते हैं वीडियो। बहुत Hello requested everyone, थी। we have released a motivational book called The Singing Panda. The book is a heartfelt guide to achieve your goals and success. You can find the link in the description below. And now, let's begin with our video. तो फिल्म कट। Hello and welcome to TFC. I'm Naveen. This time, we will start our journey traveling by Mumbai Metro. Our stop is here. We will get down at JB Nagar. This locality, JB Nagar, is named after a freedom fighter and an industrialist, Jamnalal Bajaj, the founder of Bajaj Group. The origin of the company dates back to 1905 when Bachraj Bajaj started a small cotton factory in Maharashtra, India. The factory was later taken over by his adopted grandson Jamnalal Bajaj. In 1926, Jamnalal Bajaj established Bachraj factories and started expanding the business. This company later became the Bajaj Group. Now, Bajaj Group has grown into a worldwide conglomerate with a market cap of over $25 billion. Their company, Bajaj Auto, is the world's largest three-wheeler manufacturer. The launch of their scooter Chetak in the 1970s provided the first mass personal mobility to Indians and played a key part in creating India's aspirational middle class. Now, over the decades, some of the family businesses have been split, but still, in this video, we will take a look at Bajaj family's complete business empire as started by Jamnalal Bajaj. So without any further delay, let's pull the clutch, start the engine and take a ride across the world to witness the massive business empire of Bajaj family. We will start our journey in North America and reach Mexico. Here, Bajaj is the second highest selling motorcycle brand, while Bajaj's three-wheeler, locally called Motocarros, is the market leader in the country. In Mexico, Bajaj also organizes a racing event called Pulsar Cup. In nearby Colombia, Bajaj is the highest selling motorcycle and three-wheeler brand. Here, the company has also created a Colombian reality series called Pulsar Mania. Moreover, in Latin America, Bajaj is one of the top selling motorcycle brand in Guatemala, Argentina and Peru. Furthermore, Bajaj three-wheelers are the highest selling three-wheeler brand in Central America and Peru. From Latin America, let's move all the way to Africa. Bajaj Boxer is one of the top selling bikes in the continent. We are right now in Uganda's capital, Kampala. Here, motorcycle taxis called Boda Bodas are a common mode of transport. Bajaj is the highest selling motorcycle brand in Uganda. In nearby South Sudan and Nigeria, Bajaj is the highest selling motorcycle brand, while in Kenya, Bajaj motorcycles are placed on the second position. Bajaj is also the top selling three-wheeler brand in Ethiopia, Sudan and Nigeria. From Nigeria, we will move to Europe and reach the picturesque Austria. We are right now in the peaceful town of Metthofen. Here, we will find the factory of KTM AG, the biggest motorcycle manufacturer in Europe. KTM AG sells more bikes than Germany-based BMW and Italy-based Ducati, and also owns a MotoGP team. This billion-dollar company is jointly owned by Bajaj Group. Moreover, in Europe, Bajaj motorcycles
are sold across Eastern Europe, including Ukraine, Russia, and Belarus, where recently Bajaj Festival of Speed was organized. From Europe, let's move to Asia and reach Egypt. Here, Bajaj motorcycles are the highest selling two-wheelers, while Bajaj Auto Rickshaw, locally named as Tuk Tuk Hind, is the highest selling three-wheeler. In nearby Oman, Bajaj Electricals has completed installing lighting solutions in 3 football stadiums and the coveted Salalah free zone. Moreover, Bajaj motorcycles are also popular in nearby Iran and Turkey. In Turkey, Bajaj has also released Dominar 400 Istanbul Police Edition. From Turkey, let's move to Indonesia. Here, on the streets of Jakarta, Bajaj three-wheelers, locally called Bajaj, have been part of Indonesian roads for around 4 decades, while Bajaj family also owns coal mines in the region. Moving to Philippines, Bajaj is a market leader in the three-wheelers segment, while in nearby Cambodia, Bajaj three-wheelers are also gaining popularity. Now let's move to Sri Lanka. The island nation is the largest international market for Bajaj, as Bajaj is the market leader in both three-wheelers and motorcycles. Furthermore, Bajaj's four-wheeler quadricycle Qute is also gaining popularity in the country. Moreover, Bajaj is also one of the leading two-wheeler brands in Bangladesh, while in Nepal it organizes an adventure reality event called Pulsar Dare Venture. Now, after our world tour, we will finally reach India. Right now, we are back in Mumbai. Let's take a 7-hour drive and reach Valuch. Most of the Bajaj three-wheelers we had seen across the world have been manufactured in this very plant. In India, Bajaj Auto is the largest exporter of motorcycles and three-wheelers. Meanwhile, Bajaj Electricals is one of the market leaders in lighting products. The company also manufactures a large range of consumer products and owns Nirlep, the leading producer of non-stick cookware in India. Moreover, Bajaj Electricals has undertaken rural electrification of remote villages in over 7 states, development of 3,000 circuit kilometers of transmission lines, and has also been involved in executing lighting solutions for Wankhede Stadium and Bandra Worli Sea Link in Mumbai. The group also operates a financial services company, a travel agency, a material handling equipment company, jointly owns a general and life insurance company, Bajaj Allianz, and also a leading alloy and stainless steel company, Mukund Limited. Moreover, Bajaj family's holding includes Asia's biggest sugar company, Bajaj Hindustan, a thermal power project in Uttar Pradesh, a real estate company, a comparatively small aviation company with Falcon 2000 LX fleet. Furthermore, Bajaj family also holds a stake in Bajaj Consumer Care that owns popular brands like the leading hair oil brand Bajaj Almond Oil and skincare brand Bajaj Nomarks. Not only that, Bajaj family has also been involved in establishing numerous institutions that includes commerce colleges, a science college, a nursing college, an agriculture institute, a rural institute, an engineering institute, a management institute for women, and also the reputed Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. Their charity foundations have also jointly set up a public library, a science center, a general hospital, an ophthalmology research center, an award for promoting Gandhian values, and has even aided in the establishment of Department of Sanskrit at the Mumbai University. Looking back, it is amazing to see how Bajaj Group has evolved from a small cotton factory into a global conglomerate. So, to end it, all I can say, this is Bajaj family's massive business empire. जी जनाब, ये थी बजाज फैमिली जिसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। और क्यों रिक्वेस्ट थी अब थोड़ा सा आइडिया हुआ। कहाँ से स्टार्ट लिया यार? 1905 में सिर्फ और सिर्फ एक कॉटन की फैक्ट्री थी। कॉटन की फैक्ट्री से एक बिल्कुल इंडिविजुअल इलाकाई सतह पे, फिर उसके बाद आज एक इंटरनेशनल लेवल पर
पूरी दुनिया में तकरीबन। उनका जो ज्यादा बिजनेस लेकर चले हैं वो उनके ग्रैंडसन लेकर चले हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने आज भी उनका नाम कायम दायम रखा है और आज भी चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, ज़्यादा फोकस मैंने मैंने ये देखा है, एक चीज जो मैंने नोटिस की है इंडिया में, ये हो गए या टाटा हो गए या बिरला हो गए, इंस्टीट्यूट यानी कि एजुकेशन को भी बहुत मतलब एक ऐसे है कि उन्होंने उसमें भी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, मतलब उनका उस पर भी रुझान है। हाँ, कि इंस्टीट्यूट हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, तरक्की हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ तो है। लाजमी ये चीज़ देखिए, एक ये, दूसरा फंड्स वगैरह हो लाजमी, ठीक है, गरीबों की मदद हो। अच्छा, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े टाइकॉन्स के अंदर ये देखा है कि यानी कि उनका एक डिपार्ट या उनका एक हिस्सा हमेशा फंड्स के लिए तो मुक्तस है, मुक्तस यानी फिक्स है, यानी कि उनका एक मस्ट है कि उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद करनी है। अच्छा, फिर उनके बिजनेस भी बढ़ते हैं, ये भी एक देखी गई है बात। और सेकंड ये कि जहाँ तक ज़्यादा फोकस, अच्छा इंडिया में जितने बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उनका सारा ज़्यादातर फोकस व्हीकल्स, 2 व्हील हो या 4 व्हील्स हो, ये 3 व्हीलर्स की वजह से मुझे लगता है बहुत मशहूर। अच्छा, इनका 3 व्हीलर ज़्यादा मशहूर रहा है। इनका जो फोकस है वो ऑटो रिक्शा, अच्छा बड़े प्यारे प्यारे से रिक्शा, और आउट ऑफ कंट्री भी, यानी कि इनके जो ऑटो हैं वो कहाँ इतने बड़े ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं अंदाज़ा था उन कंट्रीज़ में भी ऑटो चलते हैं जहाँ पे ये ऑटो उन्होंने दिए। तो मुझे हैरत है। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग हो गया और मैं तो हैरान था। मैं समझता हूँ कि लोकल ट्रांसपोर्ट है और ये शायद एशियाई नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में, पाकिस्तान में चलते होंगे, लेकिन उन कंट्रीज में भी 2-3 व्हीलर्स हैं। तो मुझे तो बड़ा लोकल सा फील आ रहा था, मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही थी और यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, मुझे जितना जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ बजाज को, मैंने ये देखा 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स वेस्पा टाइप इन्होंने काफ़ी बनाए। आपने देखे तो पुराने एड्स चले थे और स्टार्ट 1905 कितना, मतलब यूँ समझ ले कि, और स्टार्ट कहाँ से करे, कॉटन फैक्ट्री से। कुछ सोच भी नहीं सकता था कितने बड़े बिजनेस टाइकॉन बने, कितना मैसिव बिजनेस होगा इनका। ये भी मैं कहता हूँ कि एक तरह से प्राउड ऑफ इंडिया है कि इतनी चीज़ों में और इतना मतलब है कि कंट्रीब्यूशन है इनका। हाँ, इतना कंट्रीब्यूशन है और इनका कंट्रीब्यूशन, इतनी चीज़ें देखें, अगर कंट्री में चीज़ें बनेगी बिजनेस बढ़ेगा, लोग उससे तरक्की करते हैं, लोग तरक्की करते हैं, मुल्क तरक्की करता है, रोज़गार मिलता है, ग्रोथ बढ़ती है। तो इस तरह के अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये तो चलो बहुत बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, तो इंडियंस जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमने इस तरह के हमारे मुल्क में बेशुमार हैं, इस तरह के बिरला, टाटा, बजाज, इस तरह की कई कंपनीज हैं। अच्छा, पाकिस्तान में गिने चुने भी नहीं होंगे यार? पाकिस्तान में है, मैंने एक वो उनका सुना था, शाहिद है। हाँ, नहीं, ये असल में टाइकॉन की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक तो हाँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर पता क्या है, हमारे यहाँ मलिक रियाज हैं, वो है हमारे। अब इसी पर मैं आ रहा था कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एक बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर किसी के पास पैसा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो ज़्यादातर सेफ गेम खेल रहा है, बिल्डर्स, इन्वेस्टमेंट से डर रहा है, वो ज़मीन खरीद रहा है, प्लाट्स, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उससे भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। नहीं देखिए, बिजनेस ये वाला जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये असल तरक्की है, ये नहीं है। अच्छा इससे ना पहिया घूमता है मईशत का, आपकी जो इकोनॉमी होती है उसका पहिया घूमता है। किससे? प्रोडक्शन से। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में जैसे कि वो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं बनाकर, तो आप देखिए दूसरे कंट्रीज का जो मनी है वो कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। बिल्कुल। अब आप यहीं की प्रॉपर्टी को ले रहे हो और बेच रहे हो, तो ये तो आप इन कंट्री ही कर रहे हो। अच्छा, मैं इसका नुकसान बताने लगा ना कि आपने अगर एक बिल्डर्स का काम करते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं और उसी को सेल करते हैं, फिर इससे आपका पैसा स्टक हो जाता है, यानी कि आप अपने पैसे को बॉन्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ज़मीनें ख़रीद के, जायदाद ख़रीद के, बिल्डर्स का काम करके। बिल्डर्स के काम में ही आपका सबसे ज़्यादा मतलब है कि मुल्क तरक्की नहीं करता। अच्छा, अगर आप अपना पैसा स्टॉक कर लें, यानी कि पैसा आपने प्रॉपर्टी में, तो आपने अपने पैसे को रोक लिया। अगर उसी पैसों से कारखाना बने, कारखाने में कई लोग काम करेंगे, उनके घर चलेंगे, कुछ भी बने, XYZ,
तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि इंडिया में इस चीज़ का फोकस है इस पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग खुद बनाएंगे खुद हाँ, करेंगे, यहाँ खुद पे लोग या तो डरते हैं या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ या सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है शायद, कि जिसकी वजह से लोग मतलब लोगों को रुझान नहीं है। क्या कह सकते हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका क्या लग रहा है? मैंने ये देखा है कि इंडिया में मेड इन इंडिया इस चीज़ का बड़ा रुझान है, इस चीज़ Manufacturing पे। का। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो मेड इन इंडिया हो। हम दूसरों से क्यों लें, हम दूसरों से क्यों बिल्कुल, खरीदें, हम बिल्कुल। अपना पैसा दूसरों पे बाउंड क्यों करें, दूसरों पे क्यों लगाएं। मतलब हम जो बनाए, अगर हम मुल्क के अंदर बना रहे हैं ना, तो हमारा पैसा दूसरों के पास जा रहा है, तो मुल्क के अंदर ही तो है ना। मुझे वो वाली बात बहुत अच्छी लगी थी इनकी, जो हमने शुरू की वीडियो देखी थी, हमने कुछ अर्से पहले वीडियो देखी थी, जिसमें हमें बताया गया था कि वो जो पानी के ऊपर चल रहा था, विक्रांत। अच्छा, एयरक्राफ्ट। तो उसका मैंने देखा था कि उन्होंने कितनी खूबसूरत बात बोली थी कि ये हमारे इंडिया में बना है तो हमारी जो कॉस्ट है हमें कॉस्ट नहीं लग रही, क्योंकि इससे हमने एक इकोनॉमी का पहिया घुमाया। वाकई तो मुझे बड़ी ये बात खूबसूरत लगी, मेरे दिल को लगी, यकीन करें मुझे बहुत अभी तक याद है वो बात, कि उन्होंने कहा था कि यार इससे हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क के लोगों को ही फ़ायदा हुआ। लगा भी है तो लगा किस पे, अवाम पे लगा। तो ये अवाम मैं का कहता फ़ायदा हूँ हुआ। बहुत खूबसूरत, बहुत ही नाइस ये जुमला था, बहुत अच्छी लगा मुझे ये। तो इस तरह से, जिस तरह से ये दूसरे जो टाइकन्स हैं जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑटो की, टू व्हीलर की, गाड़ियों की, तो इससे आपके मुल्क का कितना फ़ायदा है ना। बहुत और चीज़ें फिर बाहर मुल्क में जाती है, मतलब सेल आप होती बाहर है। वालों से कमा रहे हो ना, बहुत बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल आप ऐसा ही। उनका पैसा कमा पा रहे हो। अब अच्छा, आप यहीं पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, यहीं पे बेच रहे हो, यहीं पे मतलब, तो फिर फ़ायदा क्या, कुछ नहीं। यहाँ पर जो ऑटो है, यहाँ पर ऑटो मेरे ख्याल में 2 से 2.5 लाख का, क्या ऑटो, चिंची। थ्री व्हीलर। हाँ, चिंची जो है, बिल्कुल। जो येलो कलर का हमारे यहाँ चल रहा है। तो अब मुझे ये कमेंट्स में पूछना होगा कि बजाज का जो ऑटो है उसकी कॉस्ट इंडिया वालों को क्या पड़ती है। मतलब मुझे थोड़ा सा एक तजस्सुस है ये चीज़ पता करने में, वो मैं सर्च भी कर लूँगा या आप लोग कमेंट्स के ज़रिए भी बता देंगे कि इंडियन रुपीज़ में और पाकिस्तानी रुपीज़ में वहाँ का जो ऑटो है वो कितने का होगा। बिल्कुल, आप आइडिया लगाना चाहते हैं कि वो वहाँ इसलिए पे कि क्या वहाँ cost वहाँ है। की मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ भी हमारे अभी ऑटो अच्छा, बनते मैं एक हैं, बात बताऊँ, ऑटो बनते हैं, मुझे लेकिन एक ये चीज़ पूछनी थी आपसे भी। मैंने ये देखा है कि हमारी निस्बत, हमारे यहाँ की निस्बत वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ये इस वजह से कि मेड इन इंडिया है ज़्यादातर चीज़ें, व्हीकल्स को लेकर। जाहिर सी बात है कि जब एक कार्स हो चीज़, गई, बाइक्स हो गई, तो जब मुझे एक लगता है चीज़, ऑटो में भी ऐसे ही होगा। हाँ, जब एक चीज़ आप ही की कंट्री में बनती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम पड़ती और है। मैंने ये देखा है इंडियंस चीज़ों को चिपेस्ट उस पे कॉस्ट पे बेचते हैं। अभी या फ्यूल की भी तो बात हो रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसका रेट बड़ा चिपेस्ट है, देखिए, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। देखिए जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर आप कोई चीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ और एक मंथ के अंदर मेरी 100 चीज़ें बिकती हैं। सही है। 100 चीज़ें बिकती हैं और मेरी कॉस्ट आ रही है, कम से कम भी आ रही है 100 रुपये की वो बेचनी है। ठीक है। मेरी कॉस्ट आ रही है 70 रुपये। तो 100 चीज़ें वो बिकती हैं, तो मैं उसकी प्राइस उतने रखूँगा कि यार मेरी सिर्फ 100 ही बिक रही हैं, तो मैं उसके प्राइस अच्छे खासे रखूँगा। बिल्कुल। वही चीज़ अगर मेरी 1000 बिकेंगी, तो मैं प्राइस कम कर दूँगी। प्राइस कम कर दूँगी। इससे ये होता है कि आपकी ह्यूज आबादी, आपके अंदर, आपके पास मार्केट बहुत बड़ी हो, तो आप उसकी कम कॉस्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। पता है आपको, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप हैरान हो जाओगी मेरी बात सुन के, अपनी टोटल कॉस्ट लगाने के बाद उन्हें किसी चीज़ पर, छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, गाड़ियाँ बाइक्स तो नहीं, 1 रुपया भी प्रॉफिट आ रहा होता है ना, वो नहीं छोड़ते। सेल वो कहते हैं कि इस पर भी हम मज़ीद सेल, 1 रुपया भी वो, हमारे पास सेलिंग बढ़ जाए, 1 रुपये से भी वो क्वांटिटी बना लेते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर 1 रुपया भी कॉस्ट आ रहा है, हज़ार चीज़ें बेच दी उन्होंने, तो 1000 रुपये उनके बन गए। बिल्कुल। तो इस तरीके से सोचते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा सजेस्ट की जा रही थी और हमें बहुत और ज़्यादा नई चीज़ें पता चली कि बजाज मैसिव, मतलब मैं ये समझ रही थी वाकई बिजनेस टाइकॉन होंगे, लेकिन इतना मैसिव दुनिया में यार बिजनेस होगा कि कमाल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मज़ा आ गया। कुछ नहीं बना रहे, नॉन स्टिकी बिल्कुल, वेयर वगैरह बना रहे घरेलू हैं, चीज़ें भी, लाइटिंग्स की चीज़ें बना रहे हैं, अप्लायंसेस वो बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह उन्होंने बनाई हैं, कॉलेजेस उन्होंने बनाए हैं, बिल्कुल, व्हीकल्स पे वो काम कर रहे हैं, जेट वो बना चुके हैं। मैं कह रही हूँ बचा क्या है, ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं बचा है मेरे साथ। तो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।